Hello, dear students. In today's session, we are going to start lesson number 2 from our English Live course book. And the title of our chapter is A Girl's Incredible Journey from Syria by Nujeen Mustafa. So, before starting the chapter, let's discuss something about Nujeen Mustafa. Nujeen Mustafa was a refugee and an activist. She was born in 1999 in Manbij, Syria, with cerebral palsy. Cerebral means something with the brain, or palsy means weakness or problem using the muscles. This is the basically congenital disorder of movement, muscle tone, or posture, and it occurs due to abnormal brain development, often before the birth of a child. And because of this disease, she was unable to go to school. As I told you, because of her disease, she was unable to go to school. Nujeen taught herself to speak fluent English at home by watching American TV programs and gained knowledge by watching quiz shows. When war broke out in Syria, the wheelchair-bound Nujeen and her family fled to Turkey and then to Germany, where Nujeen finally got an opportunity to attend the school. Nujeen wrote her memoir Nujeen, One Girl's Incredible Journey from War-Torn Syria in a Wheelchair in 2016. So basically we can say this is, so here it's written here, girl's incredible journey. So Nujeen herself telling us about her journey from Syria. Okay, so now let's get started. How do you think war affects people? Do you think the physically challenged are even worse affected by war? Read the story of Nujeen Mustafa, a teenager born with cerebral palsy, a condition which makes the limbs and muscles permanently weak. She was forced to flee from her country, Syria, where the war began there. Syria, when the war began there. So here means to say कि war means fight, battle. आपको आम कॉमन पीपल्स को वो कितना इफेक्ट करता है, और फिजिकली चैलेंज्ड मीन्स दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और हैंडीकैप्ड लोगों को क्या ये और भी बुरी तरीके से इफेक्ट करता है. सो दिस इज़ द स्टोरी एज आई टोल्ड यू. दिस इज़ द स्टोरी ऑफ नुजीन मुस्तफ़ा, एक टीनेजर गर्ल जिसे सेरेब्रल पैल्सी एक डिसीज़ है, और इस कंडीशन में उनके लिम्स और मसल्स जो होते हैं वो परमानेंटली वीक हो जाते हैं. और वो जब सीरिया में वॉर हुआ तो फ्ली मीन्स रन अवे, तो वो वहाँ से फोर्स थी, उनको मजबूरन सीरिया छोड़ करके वहाँ से जाना पड़ा. सो लेट्स रीड द स्टोरी. फ्रॉम द सी द आइलैंड लुक्ड मच फर्दर अवे. अगर सी से देखा जाए तो जो आइलैंड था वो काफ़ी दूर दिखाई देता था. आर डार्क ग्रे डेंगी वॉज वेरी स्मॉल. डेंगी मीन्स अ स्मॉल बोट. तो हमारी जो स्मॉल बोट थी, हमारी जो बोट थी वो बहुत ही छोटी दिखाई देती थी. इवन दाओ, फिर भी वी हैड पेड एक्स्ट्रा जस्ट टू बी द 38 ऑफ अस. बट फिर भी हमने उसके लिए एक्स्ट्रा पे किया. Which was much better than the 50 or so we had crammed into earlier boats. It was still more than double the 15 max, it said on the box, particularly with my wheelchair, and it felt very squashed. Like everything I was doing, it was my first time on a boat. I felt like a 6-year-old girl, not a 16-year-old girl. तो उन्होंने कहा कि एक छोटी सी बोट के लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था 38 ऑफ अस, जैसे कि हम 38 थे, विच वॉज मच बेटर दैन, जो कि उनसे 50 से ज़्यादा बेटर थे. सो वी
वी हैड सीन, हमने देखा था, क्रैम्ड इनटू अर्लियर बोट्स, जो पहले वाली जो हमारी बोट्स थी वो पूरी तरह से क्रैम्ड हो गई थी। क्रैम्ड मीन्स कम्प्लीटली फिल, कि पूरी तरह पानी से भर गई थी। और पर्टिकुलरली मेरी व्हील चेयर भी हमने उस बोट में रखी थी। तो ये इट फेल्ट वेरी स्क्वेश्ड, और ये हमें ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से स्क्वीज हो गई है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे हर चीज़ को, इट वॉज लाइक एवरीथिंग आई वॉज डूइंग, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम ऑन अ बोट, कि मैं फर्स्ट टाइम बोट के ऊपर बैठी थी। आई फेल्ट लाइक अ 6-year-old गर्ल, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक 6 साल की बच्ची हूँ, ना कि 16-year-old, मैं 16 साल की हूँ। वेयर आर यू, वाई आर यू नर्वस, आस्क नसरीन, नसरीन ने पूछा कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो। आई एम नॉट नर्वस, मैं नर्वस नहीं हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। डूइंग एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं ये हर चीज़ पहली बार कर रही हूँ। आई रिप्लाइड, मैंने कहा। इट्स नॉट एक्साइटमेंट, इट्स फियर, शी सेड, तो उसने कहा कि एक्साइटमेंट नहीं है, ये फियर है, ये डर है। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। शी नेवर शॉड हर ओन फियर, उन्होंने कभी अपना खुद का डर नहीं दिखाया। बिकॉज शी न्यू एवरीथिंग शी डिड वुड इफेक्ट मी, क्योंकि उनको पता था वो जो भी करेंगी वो डेफिनेटली मुझे इफेक्ट करेगा। शी वॉज द वन हु न्यू द आउटसाइड वर्ल्ड, उनको पता था, शी वॉज द वन हु न्यू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आई टुक, उनको दुनिया के बारे में जैसे सब कुछ पता था। एंड आई टुक ऑल माई क्यूज ऑन हाउ टू रिएक्ट फ्रॉम हर, और मुझे पता था, मुझे सब सिग्नल्स, क्यूज हेयर मीन्स सिग्नल्स, और मैंने वो सारे सिग्नल्स ले लिए थे, हाउ टू रिएक्ट फ्रॉम हर, कि वहाँ से कैसे उससे रिएक्ट करना है। आई डिड माई डीप ब्रेथिंग फ्रॉम ब्रेन गेम्स एंड लुकड अराउंड द बोट एट एवरी वन, मैंने बहुत गहरी सांस ली। ब्रेन गेम्स मीन्स अ टीवी शो, तो एंड लुकड अराउंड द बोट एट एवरीवन, और बोट के चारों तरफ मैंने हर किसी को देखा। वी वर ऑल स्पेस्ड आउट फ्रॉम 2 days विद लिटल स्लीप। स्पेस्ड आउट मीन्स नॉट कम्प्लीटली कॉन्शियस, मतलब हम पूरी तरह से कॉन्शियस भी नहीं थे और पूरी तरह से स्लीपी भी नहीं थे। तो हम पूरे 2 दिनों से स्पेस्ड आउट थे विद लिटल स्लीप, के बीच बीच में से नींद लेते थे और फिर जाग जाते थे। देन बीइंग इन द हॉट सन विद नथिंग टू ड्रिंक, और हमारे पास पीने के लिए भी कुछ नहीं था। पूरी गर्मी के अंदर हम वहाँ पे बोट में ट्रेवल कर रहे थे। माई 3 cousins, मेरे 3 cousins हुज मदर एंड फादर हैड बीन शॉट वर सैड एंड क्वाइट, मेरे 3 कज़न जिनके मम्मी पापा को मार दिया गया था वो बहुत ही सैड और क्वाइट थे। मैनी पीपल हैड क्लोज देयर आइज एंड वर प्रेइंग, बहुत से लोग थे जो अपनी आइज क्लोज करके बैठे थे और प्रे कर रहे थे। नसरीन वॉज क्राउचिंग ऑन द फ्लोर ट्राइंग टू होल्ड माई चेयर स्टिल, और जो नसरीन थी वो मेरी चेयर के पास बैठी हुई थी फ्लोर के ऊपर, एंड होल्ड माई चेयर स्टिल, और मेरी चेयर को पकड़ा हुआ था उसने। आर एल्डर सिस्टर नहदा डिड नॉट लुक एट द सी, हमारी जो एल्डर सिस्टर थी नहदा डिड नॉट लुक एट द सी, उसने सी की तरफ नहीं देखा। हर बेबी एंड द 3 little गर्ल्स वर ऑल क्राइंग, उसका बेबी और 3 छोटी छोटी बच्चियां वो रो रही थी। एंड शी वॉज फोकस्ड ऑन कामिंग दैम, और वो उनको चुप करवाने में लगी हुई थी। शी वॉज स्ट्रेस्ड बिकॉज शी हैड डिसाइडेड टू टेक हर चिल्ड्रन आउट ऑफ द पॉइजन इन्वायरमेंट ऑफ द वॉर of somewhere they could get on with life, go to school, but now it seemed like a big responsibility for a 33 years old alone, and she wondered what she had done. तो वो बहुत स्ट्रेस में थी क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बच्चों को ऐसे पॉइजनड इन्वायरमेंट से, जहाँ पे वार चल रहे हैं, वहाँ से निकाल करके कहीं दूर एक पीसफुल लाइफ की तरफ ले जाएगी जहाँ वो स्कूल जाएंगे। बट अब उसे ऐसा लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। वो 33 years old है और वो अकेली इन बच्चों को कैसे उनकी अपब्रिंगिंग करेगी, कैसे उन सबको लुक आफ्टर करेंगे, उन सबकी। शी हैड डन, वो सोच रही थी कि उन्होंने ये क्या किया। अंकल अहमद वॉज ऑल फ्यूरो ब्रॉड मीन्स हैविंग लाइन्स ऑफ वरी ऑन द फोरहेड। अंकल अहमद जो थे वो भी बहुत टेंस थे, बहुत वरिड थे। ट्राइंग टू ड्राइव द बोट, वो ड्राइव बोट कर रहे थे। सी, he was Uncle Ahmed and she is Nuzeen Mustafa. So he had spent the last 2 days in a hotel in Izmir studying YouTube videos on how to do it. उन्होंने 2 दिन अपने होटल में स्पेंड किए थे, जिसमें कि इज़मीर स्टडिंग यूट्यूब वीडियोज़, और यूट्यूब पे उन्होंने वीडियोज़ देख करके ये चीज़ देखी थी कि कैसे मतलब कि ये बोट चलाई जाती है। एट द स्टार्ट, बिगनिंग में, ही गन द इंजन टू मच,
and we shot forward, then zigzagged a bit as he tried to correct the course. बिगनिंग में वो बोट को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए, ये थोड़ा जिगजैग पोजीशन में जाने लगी थी, बट थोड़ी देर बाद में उन्होंने उसको एकदम करेक्ट ऑर्डर में वो लेकर के उसको आ गए थे. लुक आउट शाउटेड आंटी शरीन. शरीन आंटी बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि वहाँ देखो. एज ही बम्प्ड राइट इनटू अ वेव एंड वाटर केम ओवर द साइड्स. और पानी एक तरफ हमारी साइड में आने लगा. द सी वॉज मच लेस काम. सी जो था वो बहुत ज़्यादा काम नहीं था. देन इट हैड लुक अर्लियर इन अ डे. एक दिन पहले जितना काम वो लग रहा था उस दिन वो उतना काम नहीं था. टू स्टार्ट विद इट वॉज नाइस टू फील द स्प्रे आफ्टर बीइंग इन द हॉट सन ऑल डे. बट जब वो वाटर हमारे ऊपर स्प्रे हो रहा था, बिकॉज डे बहुत सनी था, बहुत ज़्यादा हॉट था, तो वो जब वाटर हमारे ऊपर स्प्रे हो रहा था तो हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा था. फाइनली माई यंग फॉर एवर लव टी शर्ट आई हैड वॉर्न फॉर डेज वर गेटिंग अ वॉश. फाइनली मैंने जो एक टी शर्ट पहनी हुई थी यंग फॉर एवर लव वाली, वो वॉश होनी शुरू हो गई थी. बट एज वेव्स पिच्ड अस अप एंड डाउन. बट जैसे कि जो वेव्स थी वो हमें रफली हमारे ऊपर से आ रही थी, जा रही थी. सम ऑफ माई कजन स्टार्ट रेचिंग. मेरी जो कजन्स हैं उन्होंने रेचिंग मीन्स मेकिंग साउंड एज इफ़ यू वर वॉमिटिंग बट नॉट एक्चुअली वॉमिटिंग. तो मेरी कुछ कजन्स ने रेचिंग स्टार्ट कर दिया था. अदर्स वर क्राइंग. दूसरे चीखने लगे थे, चिल्लाने लगे थे. ओ गॉड. एट वन पॉइंट अ वेव टॉस्ड अस राइट टू वन साइड. और एक पॉइंट पे आकर के जो वेव्स थी उन्होंने हमें एक साइड पे टॉस्ड कर दिया था. माई आंट लॉस्ट हर बैग. मेरी आंट का जो बैग था वो लॉस्ट हो गया विद ऑल हर वैल्यूबल थिंग्स. उसमें उनकी बहुत ज़रूरी चीज़ें थी. वी सीम्ड वेरी लो इन द वाटर. हमें ऐसे लग रहा था हम पानी में बहुत ज़्यादा लो जा चुके हैं. माई कजन्स यूज्ड देयर शूज़ टू स्कूप वाटर आउट ऑफ द डिंगी. तो बॉट में से पानी निकालने के लिए मेरे कजन्स ने अपने शूज़ का यूज़ किया. So today we will read only up to here as the chapter is lengthy. So tomorrow we will continue with the reading of this chapter. Okay. Thank you.